Good morning, students. Today we will discuss chapter 2 of civics, class 8. Chapter is ideals of our constitution. We know that a constitution is a set of rules that guides how a country, state or other political organization works. It states how a country should be governed, what are the rules, how the rulers will be elected, what are the powers and duties of those rulers. These all are prescribed और enshrined in our constitution. एक देश कैसे चलेगा, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, रूलर्स कैसे इलेक्ट होंगे, उनकी ड्यूटीज़ और पावर्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. नाउ एन आइडिया और प्रिंसिपल दैट सीम्स परफेक्ट टू यू एंड दैट यू वांट टू अचीव कैन बी टर्म्ड एज आइडियल. ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए परफेक्ट हो और आप उसे अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो ये आपके लिए आइडियल होगा. आइडियल का मतलब होता है आदर्श. It is a perfect example of a person or a thing. When something is ideal, that's why we want to achieve them. Now, top leaders of our country felt that there was a need for a constitution for entire country. So for this purpose, they established a constituent assembly because it was very, very important to run our country in a democratic manner. ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे जो देश है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चले, क्योंकि हमारे कंट्री में डिफरेंट कल्चर के लोग, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एक साथ रहते हैं. टू इस्टेब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी इन आवर सोसाइटी, इट वाज इम्पॉर्टेंट टू रन आवर कंट्री इन ए डेमोक्रेटिक मैनर, एंड फॉर दिस देयर वाज अ नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू ड्राफ्ट अ Constitution for entire India. Dr. Sachidanand Sinha, he was the first chairman of this assembly, but actually he was the temporary chairman. Dr. Sachidanand Sinha इस Constituent Assembly के पहले चेयरमैन थे, लेकिन वो टेम्पररी थे. He was not permanent. Dr. Rajendra Prasad was appointed as its president, and he was the first president of Constituent Assembly. This assembly started working on December 9, 1946, and it took almost 165 days, which was equal to 2 years, 11 months and 17 days. So we can say that it took 2 years, 11 months and 17 days to draft a constitution for our country. Now, there are few important points we must know. That constitution was passed by the assembly on November 26, 1949. यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि असेंबली ने नवंबर 26, 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम प्रोविजंस को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट में आया वो डेट था जनवरी 26, 1950. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हियर अराइजेज अ क्वेश्चन कि क्यों जब हमने 26 नवंबर 1949 को ही मैक्सिमम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था, तो हमने इतना इंतज़ार क्यों किया. रीज़न, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रीज़न, बिकॉज जनवरी 26 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन इंडियन हिस्ट्री. वी विल लुक नाउ हियर इज द आंसर. The reason January 26 was picked as the day for the constitution to come into force is because in 1929, during the Lahore session of the Indian National Congress, Lahore, which is on the bank of river Ravi, Lahore session of the Indian National Congress 1929, where Nehru ji was elected president, a resolution was passed demanding complete independence. Complete independence means Purna Swaraj. For the first time in Indian history, we demanded for complete independence. So that's why this day was very, very important for the Indian history, for the Indians. So इस डेट को हमेशा यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया. इनेक्ट करने का मतलब है हमने इसको लागू किया. So the date of 26 January was chosen to commemorate the Purna Swaraj Declaration of Independence in 1929.
पूर्ण स्वराज, पूर्ण का मतलब कंप्लीट, पूर्ण मीन्स कंप्लीट, इट इज अ हिंदी टर्म. स्वराज, स्व मीन्स अपना, राज मीन्स रूल, जहां पर कंप्लीट अपना रूल हो. दैट्स वाई दिस डेट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट वॉज selected as a date on which our constitution came into effect. Now, two more important points. We must know that national anthem of India, which is Jana Gana Mana, it was composed by Rabindranath Tagore. It was adopted by the Constituent Assembly as the national anthem of India on 24 January 1950. We can see that before 26 January, it was accepted as Indian national anthem. We always talk about national flag. हम हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं, नेशनल फ्लैग की बात करते हैं. दिस नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन प्रेजेंट फॉर्म. आज जिस फॉर्म में हम नेशनल फ्लैग देखते हैं, हमेशा ये फॉर्म सेम नहीं था. हमारा नेशनल फ्लैग जो आज हम देखते हैं, इसे एक्सेप्ट किया गया ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन 22 जुलाई 1947. It means before the independence, because we got independence on 15th August 1947. So हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही हमने अपने नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट कर लिया था. नाउ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, known to be the father of the constitution, he once said that what does social democracy mean? We know that India is a democratic country. So he said that what does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा ये इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ वेयर हम लोग पहचान करते हैं, हम लोग लिबर्टी को, इक्वालिटी को और फ्रेटर्निटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी. लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, इक्वालिटी का मतलब समानता, वेयर ऑल आर इक्वल. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा. फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. He also said that liberty cannot be divorced from equality, nor equality can be divorced from liberty. And also liberty and equality both cannot be divorced from fraternity. These three are interrelated, these three are interdependent. For a democracy, it is very important to have liberty, equality and fraternity. Now, Constitution proclaims or declares India as an independent, sovereign republic country. Now, these three terms are very very important. Before going to understand these three terms, we have to understand our preamble. Preamble होता क्या है? Why preamble is very very important for us to understand. Preamble को हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना. जब कभी हम किसी बुक के फर्स्ट पेज को ओपन करते हैं, वी फाइंड अ पेज देयर जो एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है उस पूरी बुक का. इट इज़ एन इंट्रोडक्शन और अ प्रीफेस, फॉर एग्जाम्पल टू अ बुक, अ रिटन डॉक्यूमेंट, स्पीच, etc. दैट एक्सप्लेन्स इट्स पर्पस. उस बुक का क्या पर्पस है, क्यों वो बुक लिखी गई है, इसके बारे में उस पेज को पढ़कर हम जान सकते हैं. इन अ सेम मैनर प्रियम्बल को लिखा गया है. सो नाउ विल अंडरस्टैंड वाई प्रियम्बल इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज आवर preamble of the constitution. The preamble to our constitution is like an introduction in which its basic aims and objectives are mentioned. किस एम को सोचकर और किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है, इसके बारे में हम प्रियम्बल से पता लगा सकते हैं. सो इट इज़ द इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Now here one line I have mentioned that preamble is not a part of the constitution. This line is also given in your textbook. Here arises a question, how we can say that preamble is not a part of the constitution. So let me tell you कि इस बारे में ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बिकॉज इसके बारे में कई बार सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल हो चुके हैं, इनमें काफ़ी डिबेट भी हुआ है. कई बार ऐसे केसेस में फैसला भी आया है कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. कई बार ऐसे भी फैसला आया है कि प्रियम्बल जो है इसका पार्ट नहीं है. जब आप व्हेन यू विल मूव टू हायर क्लासेस, देन यू विल कम टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक्स. नाउ, प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ.
क्यों प्रियम्बल को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में? बिकॉज इट मीन्स दैट कोर्ट्स कैन नॉट पास ऑर्डर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द आइडियाज इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में कोई भी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। In next video, we will discuss about main features of our preamble. Thank you. Hello students, in this video, we will discuss about main features of our preamble. First one is sovereignty. The preamble declares that India is a sovereign country. It means that India is free from external control, can run its own government and formulate its own foreign policy. इसका मतलब है कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है क्योंकि किसी भी बाहरी कंट्री के इंटरफेरेंस से ये फ्री है। कोई कंट्री हमें कंट्रोल नहीं कर सकती है। वी हैव आवर ओन गवर्नमेंट, हमारे पास अपनी सरकार है जिसे हम इलेक्ट करते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव आवर ओन फॉरेन पॉलिसी। किस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन हमारा होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान एंड अमेरिका। वी नो दैट देयर इज ऑलवेज टेंशन बिटवीन दिस टू कंट्रीज एंड the diplomatic ties with USA और अमेरिका is day by day increasing. So किस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन होगा इंडिया का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। कोई भी एक्सटर्नल कंट्री एक्सटर्नल पावर इसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। नाउ दिस लाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज अ टेस्टिमनी ऑफ इट्स सोवरेनिटी इज एब्सोल्युटली ट्रू। टेस्टिमनी मीन्स something that shows that something else exists or is true. So इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में इस बात को प्रूव कर देता है कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। Now there is another important word which is socialist. This word was added to the preamble by the 42nd amendment in 1976. इसका मतलब ये वर्ड जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय प्रियम्बल का पार्ट नहीं था, लेकिन इसे 1976 में थ्रू अमेंडमेंट शामिल किया गया प्रियम्बल में। वाई इट वॉज एडेड? टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के लिए इस वर्ड को ऐड किया गया बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी अलॉन्ग विथ पॉलिटिकल इक्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का यह मतलब है कि आपको राइट्स दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपने वोट्स को कास्ट कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, और आपकी जो वैल्यू है वोट्स की वो इक्वल है। सो वाई पॉलिटिकल इक्वालिटी? बिकॉज आवर सोसाइटी इज प्लेग्ड विथ इनइक्वालिटी ऑफ ऑल सॉर्ट्स। हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत तरीके से भरी हुई है। देयर आर सो मेनी सोशल एविल्स और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर बिटवीन रिच एंड पुअर। सो इनको सोसाइटी से एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी विथ पॉलिटिकल इक्वालिटी। टू ब्रिंग अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री को ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि सभी लोग इक्वल हो, बिकॉज डेमोक्रेसी स्टैंड्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। नाउ one very important word that is secular. India is a secular nation. It means that Indian government or Indian constitution maintains equal distance from all the religions. It was also added to the preamble by the 42nd amendment. Secular का मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी धर्मों को, सभी रिलीजन को इक्वल मानती है। All religions are treated with equal respect and people belonging to all religions enjoy similar rights. सभी के पास similar rights होते हैं जो सबके लिए एक होते हैं। It is also important for the non-existence of religious bias in the country. हमें पता है हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता है on the basis of caste, on the basis of gender, on the basis of color, on the basis of religion. So इसे सोसाइटी से हटाने के लिए इस वर्ड को ऐड किया गया है। इट वॉज ऑल्सो एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट डन इन 1976। We know that India is a democratic country, which means
all Indian citizens enjoy equal political rights. We citizens elect our own leaders who make laws and are accountable to the people. These leaders or rulers who make laws, they are accountable. They have to answer. They are answerable to the people. Now, we know that elections are one of the most important features of democracy because through elections we elect our rulers. Elections are held every 5 years and all citizens above the age of 18 years have the right to vote. जितने भी लोग जिनकी उम्र 18 ईयर से ऊपर की है, irrespective of their caste, gender, religion, they are given universal adult franchise. उन्हें इलेक्शंस के टाइम अपने वोट को कास्ट करने का राइट मिला हुआ है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी. नाउ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट फॉर द सक्सेस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट. कहने का मतलब है जब हम सोसाइटी में पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी को भी इस्टेब्लिश करना होगा. देन इन ट्रू सेंस देयर विल बी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड. नाउ वी नो दैट इंडिया इज सेड टू बी अ रिपब्लिक. दैट्स वाई वी ऑल्सो सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. वाई इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक? इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज the head of the state, who is the head of the state? It is president. President is the highest post held by any citizen of this country in India. President यहाँ का सबसे बड़ा पोस्ट है और he is known to be the head of the state. He is the head of the state and he is elected by the people for a term of 5 years. For a term of 5 years, president is elected by people. इसलिए इंडिया को रिपब्लिक बोलते हैं. अ कंट्री वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इट इज नोन टू बी अ रिपब्लिक. लाइक मोनार्की, जहां पर प्रेसिडेंट नहीं होता और जो रूलर्स होते हैं दे आर हेरिडेटरी. किंग का बेटा ही किंग बनेगा. बट इन आवर कंट्री देयर इज नथिंग लाइक दैट बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज वेल एज रिपब्लिक नेशन. दिस ऑल टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. थैंक यू.